battle for Bihar has just heated up with exit poll numbers painting a clear picture. But before we take you through the big exit poll numbers, let's also talk about the voters of Bihar, now who've turned out in remarkably high numbers this election. Now viewers, the overall voter turnout was recorded at about 66.9%. This is the highest that the state has ever recorded since 1951. In fact, the state witnessed enthusiastic participation with the second phase again recording an impressive 68.71% turnout, a clear sign of stronger voter engagement on the ground. Now, in fact, the first phase also saw a robust 65.08% turnout, which reflected the people's eagerness to make their voices heard through the ballot box. Now, the question is, does this surge in voting, does it signal a mood for change or a strong desire to stay the course? Well, at this point, only time will tell. (1951) से लेके अब तक हुए सभी चुनावों में हमारी माताओं, बहुओं और बेटियों ने चुनाव आयोग पर पूर्ण विश्वास जताते हुए अभी तक का सबसे अधिक मतदान किया है, 71%। बिहार के इन पारदर्शी और शांतिपूर्ण चुनावों ने पूरे भारत को राह दिखाई है। Now let's also talk about the polls. The pollsters are calling it a storming return to power for the NDA, while the Mahagathbandhan trails behind. As for the new entrant in Bihar, Prashant Kishore, well, his outfit seems to have missed the mark, failing to leave a mark in its debut outing. In fact, let me walk you through the different polls. We have the JVC exit poll. It has predicted 135 to 150 seats for NDA, while the Mahagathbandhan is seeing bagging somewhere around 88 to 103 seats. Others are likely to grab 3 to 7. Now, according to the Chanakya exit poll, the NDA could sweep 130 to 138 seats, Mahagathbandhan at about 100 to 108, while the others are still trailing at 3 to somewhere 5 seats. This is what Chanakya Pulse exit poll is saying. Now, coming to another poll, Matriz, it has forecasted about 147 to 167 seats for NDA. Meanwhile, Mahagathbandhan has projected to get around 70 to 90 seats. Coming to another poll called the People's Pulse, it has given NDA about 142 to 162 seats. Meanwhile, the Mahagathbandhan, it stands at 80 to 98, while the others are placed somewhere between 0 to 3 seats. So again, giving a strong edge to NDA in the state of Bihar, the People's Pulse projections. Now let's also come to People's Insight. It has projected about 133 to 148 seats for the NDA, 87 to 102 for MGB, all right, and 3 to 5 for others. Now we also have Polstrat exit polls. It has given NDA 133 to 148 seats, while Mahagathbandhan is getting somewhere around 87 to 102, while the others, including JSP, is apparently getting 0 seats according to the Polstrat polls. The others, meanwhile, could get somewhere between 3 to 5. Now let's also talk about the poll of polls. It is beyond doubt, according to this, that NDA comfortably is in the driver's seat with about 144 seats, while the Mahagathbandhan is standing around 93 and the others are only placed at 4. Now remember, the magic number, the majority number is 122. Bihar has about 243 seats. So with these polls coming in, with these exit polls, the projection clearly is placing NDA to the big edge. Meanwhile, Prashant Kishore's outfit, it's trailing with just 2 projected seats. So all eyes are now on November 14th, which is when the real verdict will decide who wins Bihar this time.
बिहार की लोकतंत्र की जननी की भूमि है और उस धरती पर निवास करने वाले लोगों ने लोकतंत्र के बेहतर परिणाम की अगुवाई देश को संदेश दिया है। 2020 में जहां 57% पोल हुआ था, फर्स्ट चरण में लगभग 65% और अभी लगभग 67% से ऊपर का पोल। ये बताता है उत्साह कि परिवारवाद, वंशवाद, जाति के जहर के लहर ढाने वाले को नकारा है। एक तरफ हमारे डबल इंजन की सरकार, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, अनुभवी लीडर, सबका साथ सबका विकास का भाव से लेके चलने वाला, इस पर लोगों ने विश्वास व्यक्त किया और बटन दबाया है। नहीं, अभी कैसे, जब तक रिजल्ट नहीं आए हम लोगों ने, हमारी पार्टी के लोगों ने, मैं तो स्वास्थ्य कारणों से नहीं गया था, मगर हमारी पार्टी के लोगों ने वहाँ अच्छा काम किया और हम उम्मीद करते हैं कि अच्छा होगा। लेकिन अब एग्ज़िट पोल आ रहा है, अब तो चुनाव समाप्त है, इसलिए मेरा कुछ उस पर बगैर एग्ज़िट पोल देखे या बगैर कोई ग्राउंड लेवल से जानकारी प्राप्त किए मेरा बोलना अच्छा नहीं। बिहार से वोट करके दिल्ली आया हूँ। साफ साफ लंबी लाइनें, कतारें दिख रही थी और साफ दिख रहा था कि एनडीए सत्ता में आने वाला है। एग्जिट पोल के जो नतीजे भी आए हैं कई चैनल के, वो भी दिखा रहे हैं कि एनडीए फिर से वापसी कर रहा है। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी के नाम पर लोगों ने वोट दिया है, विकास के नाम पर वोट दिया है, डबल इंजन की सरकार के नाम पे वोट दिया है। राहुल गांधी पूरी तरह फ्लॉप हो गए हैं और एनडीए भारी बहुमत से जीत गया है। हमें पूरा विश्वास है कि 14 तारीख को जब नतीजे आएंगे तब एनडीए भारी बहुमत से सरकार बनाएगी। देखिए, ये अभूतपूर्व मतदान है और ये पूरी तरह से प्रो इनकम्बेंसी की लहर है। ये नीतीश लहर थी पूरे बिहार में। एक बार फिर नीतीश कुमार जी एनडीए के ट्रम्प कार्ड के तौर पर उभरे। मतदाताओं ने आंख मूंद कर उनके चेहरे पर भरोसा किया और भरपूर मतदान एनडीए के पक्ष में आज दूसरे चरण में भी हुआ। आधिकारिक आंकड़े निसंदेह अद्भुत हैं और हम ये कह सकते हैं कि बहुत ही बड़े अंतर से 14 को जब परिणाम आएंगे तब फिर विपक्ष का कहीं पता भी नहीं होगा और बहुत ही बड़े अंतर से हमारी सरकार बनेगी। इस बार के चुनाव में आप यकीन करिए अप्रत्याशित परिणाम आ रहा है। निश्चित तौर से आप देखेंगे कि शायद कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाएगा, आरजेडी हो। लोगों को आज भी इस बात का एहसास हो रहा है कि बिहार में अगर वो सरकार आ जाए कहीं दुर्भाग्य से, तो वही 20 साल का जो लालू जी के ज़माने का एक जंगल राज्य रहा है, भ्रष्टाचार, कोई कानून व्यवस्था नाम की चीज़ नहीं थी, तो लोगों को उससे छुटकारा मिला। आज बिहार में डबल इंजन की सरकार में सुशासन हुआ है। मेरी प्रतिक्रिया ये है कि पूर्ण बहुमत के साथ महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है और जिस तरह के एग्जिट पोल आ रहे हैं वो पूरी तरीके से वही इशारा कर रहे हैं, क्योंकि आज की बम्पर पोलिंग इस बात को बता रही है कि महागठबंधन भारी बहुमत से जीत रहा है। सर, जब तक अभी आज चुनाव वोटिंग खत्म हुआ है, जब तक काउंटिंग नहीं होता है तब तक कौन क्या कह सकता है कौन जीत रहा है। ये कहना कि एनडीए की सरकार बन रही है ये बिल्कुल गलत है। अगर कोई भी चला रहा है मीडिया, वो जनता को बेवकूफ बना रहा है। जनता की आवाज समझिए, लोकतंत्र की ताकत समझिए। अब जैसे भागलपुर में हम चुनाव लड़ रहे हैं, पहले से हम कह दें कि हम जीत रहे हैं, ये कहाँ का तरीका है। जनता निर्णय लेती है। और आपको बता दें जो माहौल है बिहार में, एनडीए की सरकार बन रही है, सरकार बनेगी महागठबंधन की, इंडिया गठबंधन की, और इस बार बिहार का विकास होगा, युवकों को रोजगार मिलेगा। पहले ही से कोई कह रहा है कि हम जीत रहे हैं, यह निर्णय 14 तारीख को होगा, गिनती के बाद कि किसकी सरकार बन रही है। पूरे बिहार की 122 सीट पर जो मतदान हो रहा था और जिस तरह बम्पर वोटिंग किया गया है, तो मैं बिहार की उन
122वें विधानसभा क्षेत्र के मतदाता मालिकों को मैं जनता दल यू पार्टी की ओर से, एनडीए की ओर से मैं उन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं जो आगे बढ़ के और मतदान किए हैं। और जो उन्होंने जो हमारे पास रिपोर्टिंग है उसके हिसाब से जिस तरह विश्वास माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के प्रति जो सुशासन और विकास के प्रति जो मोहर लगाया है बिहार की जनता ने, उसके उनके प्रति बिहार की जनता के प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं। Now let's also talk about the voting trends that have emerged from the state of Bihar. The state has made history at the ballot box. The just concluded legislative assembly elections, they witnessed a record-breaking voter turnout of about 66.91%. This is the highest, in fact, the state has seen since its first election back in the year 1951. Now viewers, what's even more remarkable is the participation of women voters in this election. The female turnout, it reached an unprecedented 71.6%, clearly outpacing male voters who recorded 62.8% this time.